بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جن اور انسان کے بیچ کسی طرح کا سمپرک یا بات چیت ہونا ممکن ہے، اور آج اسی سے جڑا ایک بہت اہم سوال ہے، کیا جن غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ کیا جن انسان کا بھوشیہ جانتے ہیں؟ کیا جن بتا سکتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا جن کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی بابا، کوئی کاہن یا جادوگر یا کہے کہ میرے پاس جن ہے جو مجھے غیب سی باتیں بتاتا ہے، تو کیا اس کی بات ماننی چاہیے؟ میرے بھائیوں، ان سوالوں کا جواب ہم اپنی سوچ سے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، صحیح حدیث کیا بتاتی ہے، اور ہمارے علماء نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا ہے۔ تو آئیے بنا ڈر اور بنا وہم کے قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، غیب کا پورا علم کس کے پاس ہے؟ بھائیوں، غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، غیب کا پورا اور مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب بہت آسان ہے، جو چیزیں ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہیں، جو باتیں آنے والے وقت سے جڑی ہیں، جو باتیں اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، ان کا پورا علم کسی انسان یا جن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے مجھے بھوشیہ کی پوری جانکاری ہے، تو ہمیں بہت ساودھان ہو جانا چاہیے۔ کیا جن کو کچھ چھپی ہوئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں؟ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کو دنیا میں ہونے والی کوئی بھی بات کبھی پتہ نہیں چل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن کسی ایسی چیز کو دیکھ یا سن لے جسے کوئی انسان اس وقت نہیں جانتا، لیکن یہ غیب کا پورا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی جن کسی جگہ موجود ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی گھٹنا دیکھ لی، تو وہ اس گھٹنا کے بارے میں بتا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بھوشیہ کا علم مل گیا۔ یعنی جانکاری ہونا اور غیب کا علم ہونا دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ فرق بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا سبق۔ میرے پیارے بھائیوں، اب قرآن کی ایک ایسی آیت سنیے جو اس پورے مسئلے کو بہت صاف کر دیتی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی ایک خاص طرح کا ادھیکار دیا تھا۔ جن ان کے لیے کام کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنی جگہ پر سہارا لے کر کھڑے رہے اور جن کام کرتے رہے۔ پھر جب زمین کے ایک چھوٹے سے جیو نے ان کی لکڑی کو کھا لیا تو ان کا شریر نیچے گر پڑا۔ اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور قرآن بہت صاف کہتا ہے کہ اگر جن غیب جانتے ہوتے اتنی دیر تک اس ذلت والی محنت میں نہ رہتے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ جن غیب کا پورا علم نہیں جانتے۔ ابن کثیر نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی بات بیان کی ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اس کا مطلب اور آسان زبان میں سمجھیے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر جن کو بھوشیہ کا پورا علم ہوتا تو انہیں سب سے پہلے یہ پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن انہیں اس کا پتہ تب چلا جب ان کا شریر نیچے گرا۔ اس لیے جن غیب کے مالک نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے علم کے سامنے ان کا علم بہت تھوڑا سا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ الجن میں جنوں کی اپنی بات چیت بھی قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے برائی کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی اور ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جن خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، یعنی وہ ہر چھپی ہوئی بات نہیں جانتے۔ کیا جن آسمان کی بات سنتے تھے؟ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات آتی ہے۔ سورہ الجن کی آیت 8 اور 9 میں جنوں کی یہ بات آتی ہے، وہ آسمان کی طرف سننے کے لیے کچھ جگہوں پر بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے پایا کہ اب وہاں
कड़ी निगरानी और शिहाब यानी आग के शोले हैं। इससे हमें यह बात समझ आता है कि जिन भी हर चीज़ नहीं जानते थे वे कुछ खबरें सुनने की कोशिश करते थे और इस मामले में उनके लिए रोक और निगरानी का जिक्र आया है, यानी वे गैब के मालिक नहीं थे। फिर काहिन और जादूगरों को कुछ बातें सही कैसे पता चल जाती है? मेरे प्यारे भाइयों, अब एक बहुत अहम सवाल आता है। कई लोग कहते हैं लेकिन बाबा ने मेरे बारे में ऐसी बात बताई जो बिल्कुल सही निकली, उसने मेरे भविष्य की एक बात सही बता दी। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बहुत अहम बात बताई है। सही बुखारी की हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में पूछा। सहाबा ने कहा कि कभी कभी उनकी कोई बात सही निकल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिन किसी एक बात को सुनकर अपने साथी काहिन के कान में डाल देता है और फिर वह उनके साथ बहुत सी झूठी बातें मिला देता है। तो भाइयों, यहाँ बहुत बड़ी बात समझिए। एक बात सही निकल जाना इस बात का सबूत नहीं है कि वह व्यक्ति गैब जानता है। हो सकता है कि उसने कोई बात कहीं से सुनी हो या किसी जिन ने वो कोई बात पहुंचाई हो और उसके साथ बहुत सा झूठ मिला दिया गया हो। इसलिए केवल एक सही बात सुनकर किसी काहिन पर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। काहिन और भविष्य बताने वालों से बचिए। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई हाथ देखकर भविष्य बताता है, कोई सितारे देखकर भविष्य बताने का दावा करता है, कोई कहता है कि उनके पास जिन है, कोई कहता है कि वह छिपी हुई बातें जानता है और कोई कहता है मैं बता सकता हूँ कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक मुसलमान को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गैब का पूरा इल्म किसी बाबा, जादूगर, काहिन या जिन के पास नहीं है। सिर्फ पूछने से भी सावधान रहिए। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिन के पास जाकर सवाल करने से भी सख्त चेतावनी दी है। सही मुस्लिम में आता है कि जो शख्स किसी अर्राफ के पास जाकर उससे किसी चीज के बारे में पूछे, उसकी 40 रातों की नमाज स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए भाइयों, सिर्फ यह जानने के लिए भी ऐसे बाबा या काहिन के पास नहीं जाना चाहिए कि वह क्या बताते हैं। या मत सोचिए कि मैं तो बस पूछने गया था। नहीं भाइयों, दीन हमें ऐसे रास्तों से दूर रहने की तालीम देता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक बहुत अहम अकीदे की बात भी समझिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको बहुत सी ऐसी बातें बताई जो आम इंसानों को मालूम नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप से गैब का पूरा और स्वतंत्र इल्म था। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहलवाया कि अगर मैं गैब जानता होता तो अपने लिए बहुत सी भलाई जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना होती। यानी जो गैब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ वो अल्लाह की तरफ से बताई हुई जानकारी थी। इसी बात को सूरह अल जिन आयत नंबर 26-27 में भी समझाया गया है कि अल्लाह गैब का जानने वाला है और अपने चुने हुए रसूल को अपनी मर्जी से गैब की पूरी जानकारी देता है। तो मेरे भाइयों, यह फ़र्क बहुत साफ समझिए। जिन अपने आप गैब नहीं जानते, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को अपनी वही के जरिए कुछ ऐसी बातें बता सकता है जो आम लोगों से छिपी होती हैं। इसलिए गैब का मालिक अल्लाह है और जो कुछ किसी रसूल को मालूम हुआ वह अल्लाह के बताए हुए इल्म से हुआ। यही सही समझ है। अगर कोई कहे मेरे पास जिन है और वह भविष्य बताता है तो क्या करे? मेरे भाई, बहुत आसान जवाब है। उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, उससे भविष्य पूछने मत जाइए, उसके बताए हुए अमल मत अपनाइए और अपने ईमान को ऐसी चीज़ों के हवाले मत कीजिए। अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह से दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए, शरई रुक़या कीजिए और अगर बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज कराइए। यानी जिन के पीछे नहीं, अपने रब के पीछे चलिए। मेरे भाइयों, मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि कल बारिश होगी और अगले दिन बारिश हो जाती है, तो क्या वह गैब जानता है? जरूरी नहीं। हो सकता है कि उसने मौसम के हालात देखकर अंदाज़ा लगाया हो। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने चेहरे, आपकी बात, आपकी हालात या पहले से मिली जानकारी देखकर कोई अनुमान लगा सकता है। इसलिए किसी बात का सही निकल जाना
अपने आप में गैब जानने का सबूत नहीं है। और अगर कोई काहिन कुछ सही कह दे तो सही हदीस हमें बताती है कि उसके साथ झूठ भी मिलाया जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की पूरी बात कुछ आसान शब्दों में याद रखिए। पहली बात, गैब का पूरा और मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। दूसरी बात, जिन गैब के मालिक नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े से यह बात बहुत साफ समझ आती है। तीसरी बात, जिन कुछ ऐसी बातें जान सकते हैं जो उन्होंने खुद देखी या सुनी हो, लेकिन यह गैब का पूरा इल्म नहीं है। चौथी बात, काहिन या भविष्य बताने वाले की कोई बात सही निकल जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गैब जानता है। पांचवी बात, जिन बाबा, जादूगर या काहिन से भविष्य पूछने के बजाय हमें अपने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और छठी सबसे अहम बात, जिसका भरोसा अल्लाह पर हो, उसे भविष्य जानने के लिए किसी बाबा या जिन के दरवाजे के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों, हमें गैब की तलाश में नहीं भटकना, हमें अपने रब की तरफ लौटना है। जो हमारे लिए लिखा है वह अल्लाह जानता है, और हमारा काम है अपने रब पर ईमान रखना, उससे दुआ करना और सही रास्ते पर चलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आखिर में अपने रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कहीं अकीदा अता फरमा, हमें हर तरह के शिर्क, वहम और गुमराही से बचा, हमें गैब के बारे में सही समझ अता फरमा, हमें काहिनों, जादूगरों और झूठे दावेदारों के धोखे से महफूज रख, हमारा भरोसा सिर्फ अपने ऊपर मजबूत कर, और हमें कुरान और सही सुन्नत के रास्ते पर कायम रख। जो लोग परेशानी में हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, और हम सबके ईमान और घर परिवार की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में आसान इस्लामी इल्म पसंद आता है तो आरिफ इस्लामिक हब को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्त